Okay, good morning, everybody. Good morning, sir. Can you hear me? Yes, sir. Okay. Can you see the PowerPoint presentation? Yes, sir. Okay. So today we will continue with our discussion regarding the chromatographic parameters. We discussed individually, and we will go to the slide. Yes, peak to valley ratio. This is very simple parameter. As you can see on your right, a major peak, which is this is the major peak, and this is the peak for a minor component. So first of all, what is peak to valley ratio? To answer this question, we will focus on the figure that these are the two peaks. I may have the pen. These are the two peaks, right? And peak, what is a peak? Peak is a top position like this. This is the top position and this is the top position for the major peak. Now, what is valley? Valley is down there. This is the valley, okay? So when the valley is touching the baseline, we call this as the baseline separation. But in certain cases, when two components are very closely related to each other, and in a chromatogram, they always come very close to each other. The two peaks are very close to each other. So the major component is the peak on the right side, this one. This is the major component, this is the minor component. Now, what happens if one of the components is in very high concentration and the other one, which is very closely related to the major component, it is in very low concentration. This is the situation where we need to define peak to valley ratio. Where this condition arises, the situation arises
where there is an impurity in a major component. So I will pick up the example of aspirin. Aspirin, as you know, is acetyl salicylic acid, and it is prepared from salicylic acid. Okay, so whenever we have the finished product, that is aspirin, it is always associated with a small unconverted salicylic acid or unreacted salicylic acid that comes in the major product as an impurity. So this type of situation, the peaks like this, one of them is the major peak, the other one is the minor peak. This situation will arise in such cases in which there is an impurity in a major product. And sometimes it happens that the minor peak like this, it tends to merge with the major peak like this. So it is very difficult to estimate the amount of impurity in the product accurately. Why? Because the separation may not be the baseline separation, uh, where the resolution value is 1.5 as we learned earlier. Now, if such type of situation arises, then we need to define that what should be the position of the valley, how much above the baseline it should be that it gives you an acceptable accuracy or acceptable precision. दूसरे लफ्जों में we can say कि ये जो वैली है ये बेस लाइन से कितनी ऊंची होनी चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि ये मेथड सही है और इससे प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. आइडियल सिचुएशन इज दिस के ये बेस लाइन को टच करनी चाहिए वैल्यू. लेकिन अगर ऐसा ना हो, जो कि अक्सर हो जाता है कि वेयर देयर इज एन इम्प्योरिटी विच इज इन वेरी स्मॉल अमाउंट, और जो मेजर प्रोडक्ट है वो वेरी हाई कंसंट्रेशन उसकी होती है. तो इन दीज केसेस फिर हमें ये डिसाइड करना होता है कि बेस लाइन से कितनी ऊंची हो वैली कि उसको हम एक्सेप्ट कर लें क्रोमेटोग्राम को कि ये सूटेबल है फॉर डिटर्मिनेशन, फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द इम्प्योरिटी इन द मेजर कंपोनेंट. तो उसके लिए हम ये पैरामीटर डिफाइन करते हैं पीक टू वैली रेशो. तो ये इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है और फिगर से भी आपको पता चल रहा है कि दिस इज दी अगर हम इम्प्योरिटी को लेते हैं तो दिस इज द पीक हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पीक हाइट है. ओके, तो वैली की हाइट ये है, ये वाली वैली की हाइट है. ओके, तो इन दोनों की रेशो को हम कहते हैं पीक टू वैली रेशो. तो इसको मेजर कैसे करना है, आपने सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में इसको आप मेजर कर दें तो ये आपकी पीक टू वैल्यू रेशो निकल आएगी. तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू रेशो की कितनी हो तो वो एक्सेप्टेबल है. तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है और डिफर करता है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. मसलन एस्पिरिन में सैलिसिलिक एसिड की इम्प्योरिटी है, उसका पीक टू वैली रेशो की वैल्यू अलग होगी. पैरासीटामोल में उसका स्टार्टिंग मटेरियल, उसकी इम्प्योरिटी आ रही है, उसकी वैल्यू कुछ और होगी. तो कहने का ये मकसद है कि पीक टू वैली रेशो का जो पैरामीटर है इसकी कोई फिक्स वैल्यू या ऑप्टिमम वैल्यू नहीं है.
तो जितनी ये हायर हो उतनी अच्छी है। तो हायर होगी तो इसका मतलब है कि वैली उतनी नीचे होगी, तो पीक टू वैली रेशो हायर होगी। तो जितनी हायर हो उतनी अच्छी है। तो अब टू आंसर दिस क्वेश्चन के फिर कौन सी वैल्यू ली जाए, तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है कि हर प्रोडक्ट जो है उसकी जो अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस बेस्ट वैल्यू आए उसको आप एक्सेप्ट कर लें कि बेस्ट सेपरेशन जो अचीवेबल हो बाय changing the mobile phase composition, by changing the uh, particle size of the stationary phase, by changing the length of the column, and by changing the flow of the mobile phase, flow rate of the mobile phase. तो ये सारी चीजें कंसिडर करके तो फिर अल्टीमेटली फाइनल क्वेश्चन रिगार्डिंग पीक टू वैली रेशियो ये आता है कि इसका यूज क्या है। इसका यूज है कि अगर आप एक मेथड किसी एनालिसिस के लिए, कौन सी एनालिसिस, जिसमें आपने इम्प्योरिटी को एक मेजर कंपोनेंट के अंदर इम्प्योरिटी को आपने एस्टिमेट करना है, उसके लिए ये पैरामीटर जो है वो डिटरमिन किया जाता है। तो वो देखा जाता है कि ये मेथड सूटेबल है या नहीं। तो इन वन सेंटेंस के व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पीक टू वैली रेशियो, तो इन वन सिंगल सेंटेंस इसका आंसर ये है, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द सिस्टम सूटेबिलिटी फॉर द एनालिसिस ऑफ ए स्पेसिफिक product. Okay, now we move forward. Relative retention. This is a very simple thing to be described. What is relative uh, retention? For example, if there are two peaks like this, okay. So uh, someone may ask if this is, for example, T1, and this is the retention time of the second component. ये यहाँ पे आता है, ये इधर आता है, इधर टाइम है आपका। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि इन दिस क्रोमेटोग्राम व्हाट इज द रिटेंशन टाइम ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, तो वो हम कहेंगे फर्स्ट किया 2 मिनट। तो and what is the retention time of second component, वो for example it is 5 minutes। तो इस पूरे क्रोमेटोग्राम को अगर आप किसी को जुबानी बताना चाहें कि जी देर आर टू कंपोनेंट्स जो कि हमने सेपरेट किए, तो एक का रिटेंशन टाइम 2 मिनट आता है, दूसरे का 5 मिनट आता है। तो उससे उसको अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज द रेजोल्यूशन and how good is the separation of the two components। इसी स्टेटमेंट को यू कैन से कि दो जो कंपोनेंट्स हैं उनका रिटेंशन टाइम में 3 मिनट का फर्क है। तो ये जो फर्क बताना है, दिस इज नोन एज रिलेटिव रिटेंशन। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि विद रेफरेंस टू ईच अदर उनका जो आपस में डिफरेंस है वो आप बता दें, तो ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कि वो आपस में 3 मिनट का सेपरेशन है उसके अंदर, तो इससे पता चल जाएगा फौरन, रादर देन टू स्पीक मोर वर्ड्स लाइक जी फर्स्ट कंपोनेंट का रिटेंशन टाइम 2 मिनट है, सेकंड का 5 मिनट्स है, तो लिहाजा दोनों का जो डिफरेंस सेपरेशन होगी वो 3 मिनट की होगी। तो रादर देन टू स्पीक सो मच, आप यू कैन से कि उनका रिलेटिव रिटेंशन टाइम जो है वो 3 मिनट है। तो उससे फौरन समझ आ जाती है कि हाउ गुड इज दी सेपरेशन। तो इसका फार्मूला वेरी सिंपल, क्योंकि एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम द डेड टाइम, ये डेड टाइम है। तो ये T2, ये T2 है, T2 माइनस ये डेड टाइम इधर आता है T0। तो T2
T2 माइनस जीरो यहाँ से मेजर करना है, इसी तरह T1 माइनस जीरो ये करना है, इन दोनों की रेशो ले. दिस इज नोन एज relative retention. ओके, वेरी सिंपल पैरामीटर. तो इसी का ये जो relative retention है, इसी का दूसरा नाम है सिलेक्टिविटी, अल्फा. ओके, तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि हाउ सिलेक्टिव इज योर मेथड, एनालिटिकल मेथड. ओके, तो जितना इनमें ये अल्फा की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, जितनी अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उतना वो मेथड ज़्यादा सिलेक्टिव है. ओके, इनमें फ़र्क ज़्यादा होगा. ओके, we move forward. Signal to noise ratio. This is again a very important component and very simple. ये आपको राइट साइड पे जो पीक नजर आ रही है, इसके पहलू में आगे पीछे आप ये देखते हैं, तो ये जो है दिस इज नॉइज. ये आपकी पीक है पूरी, और ये आगे और पीछे पीक के जो है ये नॉइज कहलाती है. तो सिग्नल टू नॉइज रेशो जो है वो हर मेथड की कैलकुलेट करना मस्ट है, सो दैट उससे पता चल सके कि वो कितना अच्छा क्रोमेटोग्राम है, और उसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एरर के चांसेस कम हैं. जितना सिग्नल टू नॉइज रेशो हाई होगी, इसका मतलब नॉइज उतनी कम होगी, और जो सिग्नल है मेन पीक जो है वो उतनी ज़्यादा उसका रेस्पॉन्स होगा. तो सिग्नल टू नॉइज रेशो को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आपने देखा है कि ये जो एच लिखा हुआ है, स्मॉल एच, दिस इज द हाइट ऑफ द सिग्नल. तो ये मेजर करना है कि लोएस्ट जहाँ से ये टच कर रही है, और जो हाईएस्ट ये टच कर रही है, इन दोनों को मिलाते हुए ये दो लाइनें आपने ये ड्रा कर. तो इनके दरमियान की जो विड्थ है, दिस इज नोन एज नॉइज. और ये सिग्नल की हाइट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ बेस लाइन तक, जो कि मिडल लाइन है नॉइज के दरमियान से जो भी. तो इसका सिंपल फार्मूला है कि जो आपकी मेन पीक की हाइट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 2h, और डिवाइडेड बाय ये स्मॉल h, दैट इज द नॉइज. तो सिग्नल टू नॉइज रेशो इज इक्वल टू 2 times the main peak height, or divided by the noise, width of the noise. तो ये पैरामीटर हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ लिमिट ऑफ डिटेक्शन. तो वहाँ पे जो सिग्नल टू नॉइज रेशो थी, लिमिट ऑफ डिटेक्शन वाज इक्वल टू 3 times सिग्नल टू नॉइज रेशो. तो वहाँ सिग्नल टू नॉइज रेशो जो है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा. ओके, तो ये पैरामीटर वहाँ पे हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन द लिमिट ऑफ डिटेक्शन. और दूसरी इसकी एप्लीकेशन क्या है कि दिस पैरामीटर इज यूज्ड टू असेस द क्वालिटी ऑफ द क्रोमेटोग्राम. अगर सिग्नल टू नॉइज रेशो हाई होगी, इसका मतलब कि नॉइज कम है, तो उतनी प्रिसीजन ज़्यादा होगी, एरर कम होगी. तो ये इसका एडवांटेज. अब आ जाए, हमने प्रिसीजन तो डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज प्रिसीजन. प्रिसीजन इज द एवरेज ऑफ द रिपीटेड मेजरमेंट्स, और फिर उसके स्टैंडर्ड डेविएशन हम डिटरमिन करते हैं, वो प्रिसीजन कहलाती है. फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड ही एक पैरामीटर है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन. तो उसका फार्मूला बहुत सिंपल है कि जो भी ये स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको आप मीन से, जो आपने मीन निकाला हुआ है रिपीटेड मेजरमेंट्स का, उससे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये
परसेंटेज में एक चीज आ जाती है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, ये पैरामीटर हैं प्रिसिजन के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिसिजन जो है वो क्या होती है, तो आपने ये कहना है कि इट इज़ द मेजर ऑफ रिपीटेबिलिटी एज वेल एज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और ये बताती क्या है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर विद ईच अदर। ओके, कि आपने 10 रीडिंग ली है तो वो आपस में कितना करीब है, दिस इज प्रिसिजन। और प्रिसिजन इज डिवाइडेड इनटू टू parameters, one is repeatability and the other is reproducibility। तो ये कैसे एक्सप्रेस की जाती है इन टर्म्स ऑफ relative standard deviation rather than simple standard deviation। तो इसका दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो आरएसडी भी कहते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, और सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये दोनों इसके नाम हैं। तो ये पैरामीटर यूज होता है टू एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली प्रिसिजन। और इसमें प्रिसिजन में दो पैरामीटर आते हैं, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब दोनों को हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन से एक्सप्रेस करेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में फ़र्क क्या है। बहुत सादा सा फ़र्क है। रिपीटेबिलिटी ये है कि अगर आप सेम डे 10 मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे उसको रिपीटेबिलिटी कहेंगे। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ये होगी कि अगर आप उसको डिफरेंट डेज, आज आपने 10 रीडिंग ली है, कल भी ली है, परसों भी ली है, अगले हफ्ते ली है, उन सब की आपस में रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो वो रिप्रोड्यूसिबल। दूसरे लोगों लफ्जों में कि रिपीटेबिलिटी ऑन डिफरेंट डेज इज नोन एज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो ये पैरामीटर जो हैं ये आप यू विल कम अक्रॉस इन टेक्स्ट एंड लिटरेचर, और आप अपनी रिसर्च के अंदर भी इसको यूज करेंगे, ये दोनों पैरामीटर को। तो नेक्स्ट इज how to achieve a good separation in chromatography experiment। ये तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी सेपरेशन यानी कि रेजोल्यूशन अच्छी हो जाए। तो उसके लिए ये चार जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, इनको हम अप्लाई करके वी कैन improve our separation or we can achieve better resolution। Number one, improve the capacity factor, improve resolution, improve bandwidth। bandwidth का मतलब है कि पीक की जो ये width है ये जितनी नैरो होगी लाइक दिस, अगर ये वाइडर है तो इसकी रेजोल्यूशन पुअर होगी, अगर ये नैरो है, पीक विड्थ कम है, तो रेजोल्यूशन बेहतर होगी। ओके, तो इम्प्रूव द बैंडविड्थ यानी कि पीक को नैरो करने की कोशिश करें। देन द लास्ट थिंग इज यूज इंटरनल स्टैंडर्ड वेयर पॉसिबल, के स्टैंडर्ड जो है उसको सैंपल के अंदर आप डाल दें, ये इंटरनल स्टैंडर्ड। तो ये हम आगे जाकर लर्न करेंगे कि व्हाट इज इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं glimpse of how the resolution is affected by these parameters। ये हमारा एक इनिशियल क्रोमेटोग्राम आया, तो इसमें आप देख रहे हैं कि रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, वैल्यू बहुत हाई है। तो इसको इम्प्रूव कैसे करना है? तो अगर आप नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेस को बढ़ाएंगे, वो कैसे बढ़ा सकते हैं? बाई lowering the particle size of the stationary phase, कि जितना स्टेशनरी फेज का पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होगी। नंबर टू, जितनी कॉलम की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी उसके अंदर
नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होंगी। थर्ड पैरामीटर जितना कॉलम का डायमीटर जो है ट्यूब का वो छोटा होगा उतनी नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होगी। तो ये 3 फैक्टर मैंने आपको बताए। तो इनको आप एडजस्ट करके चेंज करके यू कैन सी द इफेक्ट। तो फिर आप देखेंगे कि ये पीक्स जो हैं ये नैरो भी हो गई हैं, ये नैरो भी हो गई हैं और जो वैली है वो काफ़ी नीचे आ गई है। ओके, अगर आप कैपेसिटी फैक्टर इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होगा कि रिटेंशन टाइम दूर दूर आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर भी रेजोल्यूशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि बैंड विड्थ जो है वो कम नहीं हुई। तो इन केस ऑफ दिस यानी नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स जब आपने बढ़ाई तो नैरो बैंड विड्थ आ गई। तो ये ज़्यादा इससे तो सिलेक्टिविटी इंक्रीज करने से आपको दोहरा फायदा हो रहा है। एक तो आपका आपकी रेजोल्यूशन बेहतर हो रही है, बेस लाइन सेपरेशन, और दूसरा ये है कि पीक विड्थ भी कम हो रही है, नैरो हो रही है पीक्स। तो by using the combination of these parameters आप कॉलम के नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स को एडजस्ट करें, कैपेसिटी फैक्टर को एडजस्ट करें, सिलेक्टिविटी को इम्प्रूव करें, तो आपको एक अच्छा क्रोमेटोग्राम मिल सकता है और अच्छी रेजोल्यूशन मिल जाए। तो अब आप देखें कि पार्टिकल साइज जो है वो नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स को कैसे इफेक्ट करता है। ये देखें, ये 10 माइक्रोमीटर था पार्टिकल साइज, तो उसमें नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स इतनी है। ओके, अगर आप 5 माइक्रोमीटर यूज करें तो नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स ऊपर चली, 3 माइक्रोमीटर यूज करें तो नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स और बढ़। सो दिस इज हाउ दिस चेंजेस। ओके, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप फ्लो रेट आप बढ़ा रहे हैं तो उससे नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स कम होती हैं। तो ये आपको फर्ज किया यहाँ पे ये एक ऑप्टिमम वैल्यू मिल रही है कि इतने फ्लो रेट तक आप 5 माइक्रोमीटर से और 3 माइक्रोमीटर से आप इस विंडो में काम कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ। whereas in 10 माइक्रोमीटर आपके पास विंडो बहुत छोटी है, आप इस विंडो में काम कर सकते हैं। यू विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स। तो इस पिक्चर से इट बिकम्स क्लियर कि हाउ द नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स आर affected by the particle size. अब क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ टू इंक्रीज कैपेसिटी फैक्टर। तो इसके लिए प्रैक्टिकल टिप्स ये हैं कि डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कि मोबाइल फेज के अंदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसकी परसेंटेज को कम करें। तो रेजोल्यूशन जिस तरह हमने वो एस्पिरिन और पैरासीटामोल वाले केस में आपको याद होगा कि लैब में किया था कि हमने मोबाइल फेज में और पानी डाल दिया था, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो मेथनॉल था उसकी अमाउंट कम हो गई एज कम्पेयर्ड विद द वाटर। तो उससे रेजोल्यूशन बेहतर होगी। तो उससे क्या हुआ था, कैपेसिटी फैक्टर इंक्रीज हुआ। तो बेस्ट स्ट्रेटजीज कि आप कैपेसिटी फैक्टर को रखें जिसकी वैल्यू 2 से 10 के दरमियान। तो अगर लेस देन 2 होगी तो इसका मतलब है कि इनसफिशिएंट है। ग्रेटर देन 10 होगी, सेपरेशन तो अच्छी होगी लेकिन लॉन्ग रनिंग टाइम है, ब्रॉड बैंड आएंगे, लो सेंसिटिविटी और पुअर एक्यूरेसी होगी। ओके, नाउ दिस slide gives you an overall summary what we have discussed in a chromatographic parameter what should be our target. तो रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, दैट वी डिस्कस्ड द ऑप्टिमम वैल्यू इज
1.5. So it should not be less than 1.5. It should be 1.5 or greater than 1.5. सेपरेशन टाइम जो है, क्योंकि एक अच्छे एनालिटिकल मेथड की ये भी करेक्टरिस्टिक होती है कि इट शुड द मेथड शुड बी रैपिड। तो 5 to 10 मिनट्स के अंदर जो है वो आपका पूरा क्रोमेटोग्राम जो है वो आ जाना चाहिए, उसके अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाने चाहिए। तो क्वांटिटेटिव पैरामीटर के अंदर रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो लेस देन 1% होनी चाहिए, जिसमें मेजर एसेज का मतलब है जिसमें आप मेजर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं, उसके लिए रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि वो उसकी क्वांटिटी हाई होती है तो उसमें प्रिसिजन यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिपीटेबिलिटी बेहतर होगी। तो एज ए रिजल्ट उसकी जो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन वो लेस देन 1% होनी चाहिए। लेकिन फॉर इम्प्योरिटी जो कि ट्रेस लेवल पे होती हैं उनके लिए हायर लिमिट रखी हुई है, क्योंकि उसमें एरर ज़्यादा होगी। तो एज ए रिजल्ट उनकी आप लेस देन 5% उसकी होनी चाहिए रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। तो प्रेशर जो है वो कॉलम के अंदर मोबाइल फेस का वो 150 के करीब होना चाहिए, इट इज़ डिज़ायरेबल। तो 200 से लेस होना चाहिए एनीवे। तो that mean it should be between 150 and 200। तो पीक शेप कैसी होनी चाहिए? एक तो पीक जो है वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, दूसरा नैरो होनी चाहिए, so as to get good signal to noise ratio। ओके, तो सॉल्वेंट कंजप्शन में भी ख्याल रखना है कि मोबाइल फेज की कंजम्पशन मिनिमम हो। दूसरे लफ्जों में रन टाइम जो है वो अगर 5 to 10 मिनट होगा तो वो बड़ा सूटेबल होगा और उसमें सॉल्वेंट आपका मोबाइल फेज कम इस्तेमाल होगा। तो दीज आर द सम ऑफ द पिक्चर्स जो कि अच्छे क्रोमेटोग्राम है। तो ये जो है एफ्लोटॉक्सिन, ये एक बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है HPLC की फूड साइंस के अंदर। तो फूड साइंस में ये होता है कि जिस तरह मूंगफली है या इस तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं उनके अंदर कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एफ्लोटॉक्सिन। तो इंटरनेशनली इसकी लिमिट है कि अगर आपने मूंगफली या ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट करने हैं तो वहाँ की जो फूड अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने लिमिट्स बताई हुई हैं कि एफ्लोटॉक्सिन की। तो वो नॉर्मली देर आर 4 एफ्लोटॉक्सिन जिनके नाम ये G1 G2 B1 B2 इस तरह से हैं। वैसे तो इससे ज़्यादा हैं लेकिन मेनली ये एफ्लोटॉक्सिन है। तो ये HPLC से आप देखें कितनी खूबसूरती से ये सेपरेट हो रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर यूजेस ऑफ HPLC। अगर आप HPLC को के आगे हमने जो लैब में देखा था HPLC उसके साथ UV विजिबल डिटेक्टर जो है वो अटैच किया हुआ था जिसमें लैम्डा मैक्सिमम। अगर उसकी जगह हम मास स्पेक्ट्रोमीटर लगा दें कॉलम के आगे एज ए डिटेक्टर तो उस टेक्निक का नाम हो जाता है LCMS। LCMS का मतलब है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कपल्ड विथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये बड़ी पावरफुल टेक्निक है। तो चूंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो आइडेंटिफिकेशन भी कर देता है और क्वांटिफिकेशन भी कर देता है। तो साइमल्टेनियसली आइडेंटिफिकेशन वो करता है मास स्पेक्ट्रम से। तो मास स्पेक्ट्रम से हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? वो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है, फिर उसके स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो उनसे हम ये तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें यू विल नो फर्दर अबाउट द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये वही चार जो
एफ्लोटॉक्सिन है, ये LCMS से सेपरेट किए हुए हैं। देखें कितनी अच्छी रेजोल्यूशन है, और तो इनको हम ज़्यादा प्रिसिजन के साथ, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ LCMS से डिटरमिन कर सकते हैं। तो मास स्पेक्ट्रम किस तरह से होता है कि हर पीक का, ये जो मसलन 4 पीक हैं, हर पीक का अलग-अलग से वो पूरा मास स्पेक्ट्रम देगा इस तरह। तो ये आप देख रहे हैं, ये चारों के मास स्पेक्ट्रा दिए हुए हैं। तो ये जो पीक्स हैं, ये मॉलिक्यूलर आयन पीक्स हैं। यहाँ से वो उनका मोलर मास का पता चलता है, तो यहाँ से उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। और ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, इनसे भी उसकी कंफर्मेशन हो जाती है कि ये वाकई वही कंपोनेंट है जिसका ये फ्रैगमेंट बन रहा है। ओके, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो LCMS से फिर आपको 2 तरह के ग्राफ मिलेंगे। एक ये क्रोमेटोग्राम, और इसी के साथ हर पीक का फिर एक एक ये मास स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो दिस इज हाउ दिस टेक्निक वर्क्स। तो वी स्टॉप हियर। आज का डिस्कशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अनदर वेरी यूजफुल सेपरेशन बेस्ड एनालिटिकल टेक्निक विच इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एनी क्वेश्चन है तो वो आप पूछें, और अगर आप ईमेल से सर ये कहना था कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जी बेटा। सर वी लव यू। ओह थैंक यू सो मच। तो मेरी कोशिश यही होगी कि इस इन दिस डिफिकल्ट टाइम, आल्दो वो फेस टू फेस टीचिंग अलग होती है, तो इसमें डिफिकल्टीज होंगी आपको, लेकिन जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों में, उनसे अगेन यही रिक्वेस्ट है कि लाइक करें। सर हमारी लैब का क्या होगा? मतलब हाँ, आज लैब भी है तो उसकी लैब का लकीली हमने कितने एक्सपेरिमेंट कर लिए, 6 और 7 कितने कर लिए? तो सर 5 किए हैं 5 मेरे ख्याल से। तो जी बाकी आपके रह गए हैं, IR रह गया है, और 1-2 और रह गए। तो IR के मैं आपको जो है वीडियो लिंक्स आपको सेंड कर दूंगा, उनको आपने गौर से स्टडी, बार बार देखना उन वीडियो को, और वहां से लर्न करना है, फिर आपने क्वेश्चन। तो इस तरह से हम ये गैप जो है वो पूरा कर लेंगे। ओके, तो नहीं तो सर ओके सर। कैंपस आके अगर हम कर लें फिर। हाँ वो तो है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमें टाइम मिला डेफिनेटली वो हम रिपीट कर लेंगे एक्सपेरिमेंट। अच्छा, मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, शायद आप वो भूल गए हैं। वो ये थी सर कि जो लास्ट टाइम हमने वो किया था HPLC का, तो उसमें इस तरह की पीक्स आ रही थी लाइक दिस। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो पीक्स हैं इनकी रेजोल्यूशन यानी R वैल्यू